इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक टाइप होता है 1 मील अ डे। इस डाइट स्ट्रैटेजी में हम 23 आवर्स फास्ट करते हैं एंड 1 आवर के टाइम स्पैन में अपने पूरा दिन का खाना कंज्यूम करते हैं। सो अगर आज आप 3 PM को अपना 1 मील खा रहे हैं देन यू विल ओनली ईट एट 3 PM द नेक्स्ट डे। सो 23 आवर्स के लिए आप फास्ट कर रहे हैं एंड व्हेन यू आर फास्टिंग यू आर ओनली अलाउड टू कंज्यूम वाटर एंड नथिंग एल्स। No fruits, no vegetables, nothing. Recent times में 1 meal a day has gained a lot of traction because a lot of influential people have been talking about it. शायद आप लोगों को पता ना हो बट मैंने भी 1 साल के लिए सिर्फ 1 meal a day फॉलो किया था। In fact, my weight loss was solely because of 1 meal a day. बट मैं इसका प्रचार नहीं करता हूँ बिकॉज 1 मील अ डे इज नॉट फॉर एवरीबडी एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल इफ डन रॉन्ग। 1 मील अ डे पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उसका कंक्लूजन ये रहा है कि पीपल हु ईट 1 मील अ डे tend to lose weight or maintain weight. Now this can be attributed to the fact that 1 meal a day can significantly reduce your daily caloric intake. It can help you adhere to a calorie restriction diet. Also 1 meal a day पे लोग रिपोर्ट करते हैं that they have higher energy levels. वो सुस्त नहीं होते हैं. They have much lesser cravings and they do not experience any afternoon crashes. So इसका main reason ये हो सकता है that our digestive system is a very big system. It uses a lot of energy. So जब आप एक meal consume करते हैं it can slow you down because a lot of blood and energy is redirected towards digesting this food. In fact, humans are wired this way because hunting for food is a survival instinct. And when you're well fed, you tend to stay relaxed and lazy. खाना खाने के बाद they tend to relax because they don't have to look for food anymore. So जो लोग 1 meal a day follow करते हैं या फिर fasting करते हैं, they don't experience any afternoon crashes. They have constant energy levels throughout the day. आपने नोटिस किया होगा that offices do not keep any important meetings after lunch time. स्कूल या कॉलेज में भी लंच के बाद कोई important lecture नहीं होता है because people are very lazy after lunch. So जो लोग fasted state में रहते हैं, they are at alert mode at all times. They don't have any cravings and they tend to be focused at all points of time. So if you want to be productive throughout the day, then delaying food for as long as possible can help improve productivity. This is what the research says and this is what most people claim. So first let me talk about my 1 meal a day journey. जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी आई स्टार्टेड विद इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 18 आवर्स एंड कंज्यूमिंग 2 मील्स इन अ स्पैन ऑफ 6 आवर्स। देन स्लोली मैं अपना फास्टिंग ड्यूरेशन बढ़ाता गया। आफ्टर अ पॉइंट आई वाज फास्टिंग फॉर 20 आवर्स एंड कंज्यूमिंग 2 मील्स इन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स। मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा दैट आई एम नॉट इवन हंग्री फॉर द सेकंड मील। मैं उसके बिना भी रह सकता हूँ। सो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सेकंड मील भी स्किप कर दूंगा एंड आई फेल्ट लाइक आई हैड अ लॉट मोर फ्रीडम। आई डिडंट हैव टू स्पेंड मेंटल एनर्जी इन डिसाइडिंग व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। सो उस दिन के बाद 1 साल के लिए मैंने सिर्फ 1 मील अ डे खाया था। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे बट मोहित व्हाट अबाउट योर हंगर, क्या आपको भूख नहीं लग रही थी? Now guys, hunger is a very complicated word for most people. You can train your hunger response. कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को भूख कम लगती है। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। But you can also train this. In fact, most of us are used to eating at the slightest inconvenience we feel. Hunger भी नहीं, अगर क्रेविंग्स आ जाए तो हम खा लेते थे। अगर हम स्ट्रेस्ड हो तो हम खा लेते हैं। अगर हम हैप्पी भी होते हैं तब भी कुछ खा लेते हैं। फूड इज मोर देन जस्ट फ्यूल फॉर आवर बॉडीज। अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड कंफर्ट इन फूड। फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। पीपल bond over food and they also cry over food. So with all these feelings, it is very easy to get confused with our hunger response. After a point, आपको पता भी नहीं what is true hunger. Guys, you are eating just because you are accustomed to eating frequently. आपको आदत हो चुकी है दिन में 3 बार खाने की, 2-3 बार स्नैक्स खाने की, चाय पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की. You are accustomed to it. So fasting and 1 meal a day help me understand what is true hunger. मेरे को असली भूख कब लगती है? Because देखो guys, मेरे बॉडी में इतना stored fat है. There is a lot of stored energy. I can survive without food for long periods of time. So 10 months के लिए 1 meal a day फॉलो करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा. I decided to do a prolonged fast. मैंने 72 आवर्स के लिए फास्ट किया था. I did not eat anything. मैं सिर्फ पानी पी रहा था. ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए किया था टू सी मेरे को कब असली भूख लगेगी. When will I feel dizzy? When will I feel tired? But guess what? 72 आवर्स फास्ट करने के बाद भी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगी थी. इनफैक्ट मैं जिम भी गया था इस दौरान. मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी शेयर की थी. ड्यूरिंग दिस वर्कआउट आई वॉज 48 आवर्स फास्टेड. इस प्रोलॉन्ग फास्ट में मैंने कुछ भी नहीं खाया था. आई कंज्यूम्ड जस्ट सॉल्ट एंड वाटर एंड एवरी नाउ एंड देन आई वुड टेक सम शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स. 72 आवर्स के बाद मैंने फास्ट इसलिए ब्रेक किया था बिकॉज मेरी मम्मी मेरे को फोर्स की थी. येस, इट वॉज नॉट अंडर मेडिकल सुपरविजन, सो आई डू नॉट एडवाइस एनी ऑफ यू टू फॉलो प्रोलॉन्ग फास्टिंग. Make sure you take your doctor's advice before doing anything like this. Guys, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने वेट लॉस जर्नी के एंड की तरफ किया था. So I was already used to fasting. So I don't recommend doing this unless you are accustomed with fasting, unless your body is adapted to using fat as its primary source of fuel. But yes, this experiment helped me understand how powerful the human body is
and how important it is to train our brain. Guys, you need to learn how to differentiate between hunger and cravings. Now let's talk about the most important question. 1 meal a day पे खाना क्या है? What to eat on OMAD? Now because of दिन में एक ही बार खा रहे हैं, it is very important to have a nutrient dense meal. Your meal should have all essential amino acids, essential fatty acids, vitamins and minerals. गए जब आप 1 meal a day पे होते हैं, आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सो जब मैं 1 meal a day खा रहा था, मेरे मील में हुआ करता था रफली 300 ग्राम चिकन, 3 से 5 अंडे, 100 ग्राम पनीर, मशरूम, ब्रोकली, कैरेट, बेल पेपर, बीन्स और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स. स्पाइसेस पे भी कोई रोक टोक नहीं थी. मैं टेस्टी खाना बनाता था. आई वुड मेक अ वेरी टेस्टी चिकन करी. रेसिपी इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इनफैक्ट मैं अपने एग्स पे थोड़ा चीज़ भी डालता था. आई यूज्ड टू यूज़ ऑर्गेनिक चीज़. इसके साथ साथ मैं कुछ नट्स एंड सीड्स भी खाया करता था, लाइक वॉलनट्स, पिस्ताशियो, आलमंड्स एंड सनफ्लावर सीड्स. अगर मैं किसी दिन घर पे चिकन नहीं बना सकता था, आई वुड ऑर्डर हाफ तंदूरी चिकन और हाफ ग्रिल्ड चिकन. सो गाइस, इट्स अ लॉट ऑफ फूड. जब आप 1 meal a day पे होते हैं, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. नाउ वेयर आर द कार्ब्स? इस 1 meal में रोटी एंड कार्ब्स क्यों नहीं है? सो जब मैं OMAD पे था, मेरे को रियलाइज हुआ दैट कार्ब्स आर एम्प्टी कैलोरीज हियर. कार्ब्स आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज. वी हैव एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वी हैव एसेंशियल फैट्स. There are no essential carbohydrates. I'm not saying carbs are bad. इनफैक्ट मैं अभी बहुत सारे कार्ब्स खाता हूँ, लेकिन जब मैं 1 meal a day पे था, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू हैव न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स. स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स वेर नॉट पार्ट ऑफ माई डाइट. इंस्टेड कार्ब्स की जगह मैं प्रोटीन इंक्रीज कर लेता था. आई वुड इंक्रीज माई वेजीज एंड आई वुड इंक्रीज माई फैट्स. नाउ इस डाइट के साथ साथ मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी लेता था, लाइक ओमेगा 3 फिश ऑयल, मल्टीविटामिन एंड शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स. गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बस इतना करने से मेरे को पता चल जाता है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है. ना OMAD डाइट पे आपको सप्लीमेंट्स कब कंज्यूम करने चाहिए? वैसे अगर आप मल्टीविटामिन, फिश ऑयल ये सब ले रहे हैं, आई रेकमेंड कि आप इसको अपने मील के बाद कंज्यूम करें. एंड अगर आप क्रिएटिन लेते हैं OMAD पे, यू कैन कंज्यूम क्रिएटिन एनी टाइम ऑफ द डे. क्रिएटिन विल नॉट ब्रेक योर फास्ट. व्हाट अबाउट वे प्रोटीन? क्या आप OMAD डाइट पे वे प्रोटीन ले सकते हैं? वैसे तो जब आप फास्ट कर रहे हैं 23 आवर्स के लिए, आई डोंट रिकमेंड दैट यू कंज्यूम एनीथिंग. कीप द फास्ट क्लीन, सिर्फ पानी पीजिए. लेकिन जब आप अपना 1 meal खा रहे हैं, अगर आपके इस 1 meal में प्रोटीन की मात्रा कम है, देन यू कैन सप्लीमेंट वे प्रोटीन विद दिस मील. अगर आपको सप्लीमेंट रिलेटेड और कोई डाउट हो, देन यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन. गाइज, OMAD इज फॉर पीपल विद अ बिग एपेटाइट. मेरे इस 1 meal में रफली 120 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हुआ करता था. नाउ आप सोच रहे होंगे, क्या हमारी बॉडी एक सिटिंग में 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को अब्सॉर्ब कर सकती है? वेल, द आंसर इज यस, मोस्ट डेफिनेटली. योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू गिव इट. बट हाँ, डिवाइडिंग योर प्रोटीन इनटू स्मॉलर सर्विंग्स ऑफ 30 to 40 ग्राम्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस. बट प्रोटीन का गोल सिर्फ मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है. प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडीली ऑर्गन्स. आपका हार्ट, लिवर, किडनी को भी अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है. सो योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू गिव इट. प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर योर मसल्स गाइज. आपको ये अंडरस्टैंड करना है. देयर इज अ लॉट मोर रीजन व्हाई यू शुड बी कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन डाइट. सो अगर आप 1 meal a day स्टार्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 100 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करें. नाउ ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि मोहित, व्हाई डोंट यू जस्ट स्प्लिट दिस 1 big meal into 3 smaller meals? Anyways, your daily caloric intake will be the same. So back then I followed 1 meal a day for the sake of convenience. मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरा दिन किचन में स्पेंड करूं. ये सोचो कि मैं अगले मील में क्या खाऊं, इस मील में क्या खाऊं, what options do I have. डाइट रिलेटेड स्ट्रेस मेरे को अवॉइड करना था. Instead I found it easy to not eat at all than to be selective with what I'm eating. Guys, मेरी एपेटाइट बहुत बड़ी है. मेरे से दिन में 4-5 छोटे मील नहीं होते. आई वुड प्रेफर कि मेरे को 2 बड़े मील दे दो एंड आई एम हैप्पी. गाइज, मैं अपने वेट लॉस जर्नी के टाइम सुबह 6:30 बजे उठता था, 8 बजे कॉलेज पहुंचता था. आई वुड ट्रैवल फॉर 25 किलोमीटर्स. कॉलेज में 6 से 8 घंटे स्पेंड करने के बाद वापस घर पहुंचता था 5 बजे. सो आई वॉज ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर्स एवरी डे एंड घर पहुंचने के बाद मैं अपना 1 meal खाता था. सो पूरा दिन कॉलेज में आई वॉज फास्टेड. आई वुड नॉट ईट एनीथिंग, ओनली सिप ऑन वाटर. मैंने इसलिए किया था बिकॉज मेरे को पता था मेरे कॉलेज में कोई हेल्दी ऑप्शंस नहीं है एंड अगर मैं कुछ जंक खाने लगूं देन आई प्रॉब्ली कांट कंट्रोल माई सेल्फ. कॉलेज में फास्टेड रहने से आई वॉज वेरी अटेंटिव. मैं बिल्कुल लेजी नहीं था. I would take down all the notes and I would make sure that all my work is done in college itself. Because lunch break के दौरान I didn't have anything to do. वो 1 घंटा I would spend on doing something else. So पूरा दिन fasted रहने से भी
बिल्कुल मेरे को डिजीनेस नहीं रहती थी, आई वुड नॉट फील टायर्ड। इनफैक्ट मैं 50 किलोमीटर्स ट्रैवल भी कर रहा था। आई वुड रीच होम, ईट माई 1 मील अ डे एंड देन आई वुड हिट द जिम एज वेल। सो ओमैड डाइट पे कन्वीनियंस रहती है, यू कैन ईट योर 1 मील व्हेन यू आर एट होम। ना आपका क्वेश्चन होगा, मोहित व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट योर 1 मील अ डे? गाइस वैसे तो आई रेकमेंड कि आप अपना ये 1 मील सोने से 3-4 घंटे पहले कंज्यूम करें एंड उठने के 2-3 घंटे बाद कंज्यूम करें। सो दोपहर के आसपास इज द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम दिस 1 मील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मसल लॉस। क्या ओमैड डाइट पे मसल लॉस हो सकती है? Did I lose muscle? Guys, 1 meal a day can increase the likelihood of muscle atrophy. शायद इस डाइट पे मसल लॉस हो सकती है अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं एंड अगर आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ओमैड डाइट पे इनएक्टिव हैं then you can and will lose muscle. So OMAD डाइट पे aim for at least 100 grams of protein and make sure that आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। I did not lose any muscle. In fact, मैं 1 meal a day पे strong होता ही गया। Definitely मेरा ट्रांसमिशन देख के कोई नहीं बोलेगा that I lost muscle because I didn't. I became stronger. I did put on some muscle. Now ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहा था, मैं एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा था। Guys, I recommend that you check out my workout program that is available for purchase on my website shopbigman.in. ये वर्कआउट प्रोग्राम मैंने बहुत सारा ट्रायल एंड एरर के बाद ड्राफ्ट किया है। ये वर्कआउट प्रोग्राम मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस एंड मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस के बाद ड्राफ्ट किया है। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड गिव योर 100% while following this program. काफी सारे लोग इस प्रोग्राम को फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहे हैं। सो मेक श्योर यू गिव इट योर 100%. Now next, who should not follow OMAD? Guys, वैसे तो I don't recommend any women to follow OMAD. I think 1 meal a day can significantly impact your hormones. In fact, women should not follow any severe calorie restriction. Keep a small deficit of 25 to 35% only. So ladies, अगर आपको फास्टिंग करनी है, I recommend कि आप 18 hours फास्ट करें and 6 hours के टाइम स्पैन में आप 2 meals plus 1 snack ऐसा कोई डाइट फॉलो करें. Next, who should not follow OMAD? People with small appetites should not follow OMAD. अगर आप एक मील में 1500 कैलोरी नहीं खा सकते, 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते, then you should probably stay away from 1 meal a day. आप फोकस कीजिए कि आप दिन में 3 मील खाएं and try to hit at least 100-120 grams of protein through those meals. Next, people with any health condition or eating disorders should stay away from 1 meal a day. Make sure कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस लें before hopping on to any severe calorie restrictive diet like OMAD. Now guys, मेरा एक्सपीरियंस तो आपने सुन लिया, but I also want you to hear about my online client Simar. I mean, I call him Simar, but उनका पूरा नाम सिमरदीप है. He's an IT professional. He's a busy man. He wants to optimize his performance. He wants to optimize his health. So he came to me. Guys, Simar has also lost roughly 50 kgs. Simar and I have been working together for the last 1 year, and for a brief period of time Simar also followed OMAD. Now we are following 3 meals a day and Simar is currently on a power building block, but weight loss के लिए there was a brief period of time जब Simar ने OMAD follow किया था. So here is his experience. So hello guys, and thanks Mohit bhai for choosing me as an example to share how good of an experience has been with you for the last 1 year. So let me just give you a brief of a background. मैंने actually last year April I think I came across one of his transformation reels जिसमें उन्होंने अपना 51%